Very good morning, students. Today we'll take a poem, A Psalm of Life. It is very inspiring poem written by the American poet Henry Wadsworth Longfellow. Poem is didactic in tone. Didactic means शिक्षात्मक, उपदेशात्मक, बहुत ही उपदेश देती है. It is very optimistic poem. First of all, we will understand कि psalm क्या होता है. Psalm is a religious or sacred song usually used in Christian worship. यहाँ पर हम देखते हैं कि Psalm of Life का मीनिंग क्या है. Song of Life से, where the poet glorifies life and its possibilities. जहाँ पर जो poet है वो लाइफ की और उसकी possibilities को glorify कर रहा है, उन्हें और निखार करके बता रहा है. It is an invocation, मतलब प्रार्थना है. To mankind to follow the path of right way to live this life. कैसे कि righteousness का पाथ हम फॉलो करेंगे, उसके लिए प्रार्थना है संपूर्ण मानव जाति से. The poem A Psalm of Life often takes its subtitle, which is written over here, What the Heart of the Young Man Said to the Psalmist. Actually here the speaker, the young man, responds to the biblical teachings that this human life is not important and that we are made of dust and eventually return to dust. Biblical teachings ये हैं कि जो मानव जीवन है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि हम लोग मिट्टी से आए हैं और मिट्टी में ही हमें समा जाना है. बट ऐसा नहीं है, पोएट ऐसा कहता है, बिकॉज दिस लाइफ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. सो वी मे टेक इट एज अ साम इन रिस्पॉन्स टू अ साम. ये एक साम है, एक साम के रिस्पॉन्स में, एक सॉन्ग है दूसरे सॉन्ग के रिस्पॉन्स में. चलिए हम पोएम शुरू करते हैं. पोएम शुरू करने में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम पोएम का रसास्वादन करें, उसे एंजॉय करें. तो मैं पोएम एक बार आपको सुनाऊंगी विद प्रॉपर टोन, इंटोनेशन, स्ट्रेस एंड पॉजेस. आप उसे ध्यान से सुनिएगा और उसको एंजॉय कीजिएगा. देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. टेल मी नॉट इन mournful numbers, life is not an empty dream. For the soul is dead that slumbers, and things are not what they seem. Life is real, life is earnest, and the grave is not at school. Dust thou art, to dust returnest, was not spoken of the soul. Not enjoyment and not sorrow is our destined end away, but to act each tomorrow find us farther than today. Art is long and time is fleeting, and our hearts, though stout and brave, still like muffled drums are breathing funeral marches to the grave. In the world's broad field of battle, in the bivouac of life, be not like dumb driven cattle, be a hero in the strife. Trust no future, however pleasant. Let the dead past bury its dead. Act in the living present, heart within, and God overhead. Lives of great men all remind us we can make our lives sublime, and departing leave behind us footprints on the sands of time. Footprints that perhaps another, sailing over life's solemn main, a forlorn and shipwrecked brother, seeing shall take heart again. Let us then be up and doing, with a heart for any fate, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait. आपको पोएम सुनने में मज़ा आई होगी, आपने एंजॉय किया होगा. अब हम पोएम को एक्सप्लेन करेंगे. The poem begins with the verb tell. Tell me not in mournful numbers. Life is not an empty dream. For the soul is dead that slumbers, and things are not what they seem. Tell verb जान रहे हैं ना, उससे शुरू होती है. And it is very in an imperative manner. And the very first sentence strikes the positive keynote of the poem. Poem is full of positivity. बहुत ही पॉजिटिविटी से भरी हुई पोएम है. ये इंडिकेट करती है द पोएट
that the poet is going to give us some instructions on what this life actually is and how we should take it. मतलब कि लाइफ कैसी होनी चाहिए और हमें इसे कैसे लेना चाहिए, ये पोएट बताना चाहते हैं. द पोएट आस्क्स अस नॉट टू टेल हिम इन sorrowful verses that life is a hollow and meaningless dream. जैसे यहाँ पे कहा ना, लाइफ इज़ नॉट एन एम्प्टी ड्रीम, टेल मी नॉट इन मॉर्नफुल नंबर्स. मुझे मॉर्नफुल नंबर्स में मत बताइए, सॉरोफुल वर्सेस में मत बताइए कि लाइफ इज़ अ हॉलो, वो मीनिंगलेस है, मीनिंगलेस ड्रीम है. हेयर लॉन्ग फेलो स्लैम्स द पेसिमिस्ट, मतलब कि पेसिमिस्ट को एकदम कटाक्ष करते हैं उनके ऊपर, जो हु सिंग मेलंकली सॉन्ग्स, यानी कि जो कि सैड सॉन्ग्स को गाते हैं, जो कि लाइफ में हमेशा सैडनेस ही देखते हैं, उनको वो काट देते हैं उनकी बातों को. फॉर द सोल इज़ डेड दैट स्लम्बर्स, वो सोल्स डेड हैं दैट आर स्लीपिंग, यानी कि अ पर्सन हु स्पेंड्स ऑल हिज टाइम स्लीपिंग इज़ ऑलरेडी डेड. सच वर्थलेस एग्जाम्पल्स ऑफ लाइफ ऑफन मिसगाइड अदर्स. अगर हम ऐसे वर्थलेस एग्जाम्पल्स को लेकर के चलेंगे तो वो ऑब्वियसली सबको मिसगाइड ही करेंगे. एंड द पोएट यानी कि लॉन्गफेलो अश्योर्स दैट लाइफ इज़ नॉट सो शेडी और वर्थलेस. लाइफ इतनी भी अंधकारमयी और मूल्यहीन नहीं है एज इट लुक्स लाइक, जैसा कि दिखती है लोगों को ज़्यादातर. एंड इट हैज़ मच मोर पोटेंशियल दैन वी थिंक ऑफ, यानी कि इसमें बहुत कुछ है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं. एंड थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम, यानी कि चीज़ें वैसी नहीं है जैसी हमें दिख रही हैं. ठीक है, पोटेंशियल दैन वी थिंक ऑफ, ये ऐसा, उसमें बहुत पोटेंशियल भरा है. अगर हम कुछ करते हैं तो हमें दिखेगा. लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ अर्नेस्ट, एंड द ग्रेव इज़ नॉट एट स्कूल. द सेकेंड स्टैंजा बिगिंस विद द लाइन लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ अर्नेस्ट. This also conveys the poet's positive attitude towards life. According to him, life real है, serious है, baseless नहीं है, useless नहीं है, इसलिए हमें लाइफ को lightly नहीं लेना चाहिए. To him, grave is not the ultimate goal of life. मतलब कि life does not end with death. डेथ से हमारी लाइफ ख़त्म नहीं होती है. ये इंडिकेट करना चाहते हैं यहाँ पे कि इन दिस वर्ल्ड इवन आफ्टर आवर डेथ आवर वर्क रिमेन. आगे कहते हैं ही थिंक्स डस्ट दाउ आर टू डस्ट दाउ रिटर्नेस, मतलब कि यू आर मेड ऑफ डस्ट एंड यू विल गो बैक टू डस्ट आफ्टर डेथ. ये सिर्फ बॉडी की बात है, नॉट स्पोकन ऑफ द सोल. हमारी आत्मा की ये बात नहीं है. इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू द सोल. So the poet makes it clear that he believes in the existence of the soul after our death. है ना, यानी कि हमारी बॉडी के बाद भी, हमारे शरीर मृत हो जाने के पश्चात भी हमारी आत्मा है. Not enjoyment and not sorrow is our destined end of way. The third stanza of A Psalm of Life, it is about ideal way of living. The poet suggests that neither enjoyment nor sorrow should be our ultimate aim or way of life. ना हमें बहुत खुशी की आकांक्षा करनी चाहिए, ना हमें बहुत दुख का. ये सब हमारे अल्टीमेट एम या जीवन जीने के तरीके नहीं होने चाहिए. He means to say that in an ideal life there should be both in a balanced way, यानी कि enjoyment और sorrow दोनों ही balanced way में होना चाहिए. But to act each tomorrow find us farther than today. But that is not crucial. The most important thing is to work and work diligently so that we can always be a better learned, better skilled, better mannered human being with every passing day. The poet in the Psalm of Life does not want us to waste even a single day. हमें एक दिन भी वेस्ट नहीं करना चाहिए. वी शुड क्रेव फॉर गोइंग फॉरवर्ड फादर ईच डे. आगे बढ़ते रहने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए इन आवर जर्नी ऑफ लाइफ, क्योंकि जीवन एक यात्रा के समान है. आर्ट इज़ लॉन्ग एंड टाइम इज़ फ्लीटिंग एंड आवर हार्ट्स दो स्टाउट एंड ब्रेव. The fourth stanza of the poem, A Psalm of Life, is about our responsibilities in this life, about the work assigned to us. Art is long and time is fleeting. It means that the work given to us is vast and time consuming. जो हमें काम दिया गया है वो बहुत अधिक है और बहुत समय खर्च करेगा, उस पर समय लगेगा. But the time is running away fast with every moment. लेकिन समय भी है जो बहुत तेज़ी से भाग रहा है.
The poet then says that though our hearts are brave and stout, है ना, बता रहा है कि हमारे हार्ट बहुत ही बहादुर बनाए गए हैं. We fear death and our heart beats when we realize that that is certainly coming our way bit by bit. हमारा जो हृदय है वो धड़कने लगता है, वो समझने लगता है कि धीरे धीरे जो डेथ है वो हमारे करीब आ रही है. Still like muffled drums are breathing funeral marches to the grave. Longfellow compares this situation of heart to the beating of the clothed drums at the funeral marches to the grave. जब भी कभी किसी की अंत्येष्टि होती है, फ्यूनरल होता है, तो वहाँ पे क्लोथेड ड्रम्स की जो बीटिंग होती है फॉरेन में, उससे कंपेयर करते हैं. हियर ही मीन्स टू से दैट वी शुड यूटिलाइज अवर लिमिटेड टाइम स्पैन टू द फुलेस्ट इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग इट इन द थॉट ऑफ डेथ और अदर सच थिंग्स. यानी कि हमें अपनी मृत्यु का विचार करके और अन्य विचार करके अपने समय को बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहिए. In the words broad field of battle in the bivouac of life. In this stanza, the poet compares this world to a vast battlefield. एक बहुत बड़ा युद्ध क्षेत्र है where we मतलब the human beings come temporarily in the camps to fight the battle of our life. हम कैंप्स में आ रहे हैं और अपने जीवन का जो संघर्ष है वो हमें खुद ही लड़ना है, स्वयं ही लड़ना है. So the human beings are compared with troops. इसीलिए कह रहे हैं कि हम लोग ट्रूप हैं, ग्रुप्स हैं या कैंप्स हैं. द पोएट अर्जेस अस टू बी अ हीरो इन दिस बैटल ऑफ लाइफ, टू फाइट दिस आउट ब्रेवली एंड फाइनली विन इट. बी नॉट लाइक डम्ब ड्रिवन कैटल, बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ. यानी कि हमें जैसे जो भीड़ में चलने वाले भेड़ बकरी होते हैं कि उनको कोई अल्टीमेट एम नहीं होता है, उनको बस बढ़ना होता है, ऐसा नहीं कर. बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ. Trust no future, however pleasant. Let the dead past bury its dead. In the sixth stanza of the poem, the poet reminds us of a very popular quote: learn from the past, live in the present, and hope for the future. But here the poet instructs us not to trust the future, however pleasant it may seem, cause we after get carried away by the happy dreams about our future and forget to act in the present. कितना भी प्लीजेंट फ्यूचर क्यों ना नज़र आए, लेकिन हमें उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए. और पास्ट वो तो अपने आप में पास्ट है, उसे भी पास्ट को अपने साथ पास्ट इवेंट्स को फॉरगेट कर जाना चाहिए. एज दे आर डेड एंड दे शुड नॉट हॉन्ट अस एनी मोर. हमारा एफर्ट होना चाहिए फॉर अवर प्रेजेंट एक्शन. एक्ट इन द लिविंग प्रेजेंट, हार्ट विद इन एंड गॉड ओवर हेड. यानी कि what is crucial is to act in the present, in the living present. We have to follow our heart and keep faith in the God overhead. हमें अपने हार्ट को फॉलो करना चाहिए और गॉड पर हमेशा फेथ रखना चाहिए. Lives of great men all remind us we can make our life sublime. In the seventh stanza of the poem, the poet says that the lives of so many great and successful men remind us that we can also achieve those heights if we wish and strive that. अगर हम विश करेंगे और स्ट्राइव करेंगे तो हमें भी ऊंची से ऊंची चीज़ हमें मिल सकती है. क्योंकि and the next is and departing leave behind us footprints on the sands of time. We are not going to live forever, but we can leave our marks of work on the infinite flow of time. यानी कि हम अपना कार्य तो छोड़ करके जा सकते हैं, हमारी बॉडी तो चली जाएगी, लेकिन हम अपनी वर्क से लोगों को हमेशा अपने आप को याद करा सकते हैं. विच वुड, जो हमारा वर्क होगा, आवर वर्क वुड इंस्पायर लेटर जनरेशन्स टू फॉलो आर वे. जो आने वाली जनरेशन है उनको हमारा वर्क इंस्पायर करेगा. फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम, फुटप्रिंट्स छोड़ के जाने हैं. फुटप्रिंट्स दैट परहैप्स अनदर सेलिंग ओवर लाइफ सोल मेन
forlorn and shipwrecked brother, seeing shall take heart again. It is the penultimate stanza. Penultimate stanza वन बिफोर द लास्ट स्टैंजा, यानी कि लास्ट स्टैंजा के एक पहले वाले स्टैंजा को पेनुल्टीमेट स्टैंजा बोलते हैं। यहाँ पर पोएट कंटिन्यू करता है विद द सेम थीम ऑफ लिविंग अ फुटप्रिंट टू इंस्पायर अदर्स टू फॉलो, यानी कि हम फुटप्रिंट्स छोड़ के जाना चाहिए ताकि आगे आने वाली जो जनरेशन है वो उसे फॉलो कर सकें। ही कंपेयर्स अ डिजेक्टेड और रेचेड पर्सन विद अ होपलेस शिपरेकेट मैन सेलिंग ओवर द लार्ज सी ऑफ लाइफ। हर कोई एक बहुत ही बड़े समुद्री के बराबर जो जीवन है उस पर सेल कर रहे हैं। अब उससे कंपेयर करिए कि अगर कोई डिजेक्टेड और रेचेड पर्सन है, वो पर्सन कैसे अपने आप को हेल करेगा। द पर्सन कैन फाइंड द एग्जाम्पल सेट बाय अस, जो हम एग्जाम्पल उसके सामने रखेंगे, एंड कैन गेन करेज एंड होप टू मूव फॉरवर्ड, और इसी तरह से उसे करेज मिलेगा और वो मूव फॉरवर्ड करेगा, वो आगे को फॉरवर्ड करेगा। Let us then be up and doing, with a heart for any fate, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait. In the final 4 lines, the poet Longfellow asks us to be up at once and start working. काम करने पर जोर दे रहे हैं यहाँ पर पोएट लॉन्गफेलो। However, the poet here urges us not to mind the consequences. हमें consequences को माइंड नहीं करना है, और ना ही हमारे माइंड को प्रिपेयर करना है कि मतलब हमारे साथ आगे क्या होगा। हमारा माइंड प्रिपेयर होना चाहिए फॉर एनी फेट, कुछ भी हो। वी मस्ट कैरी ऑन, हमें आगे बढ़ना है। फॉर रीचिंग ग्रेट हाइट्स, हमें ऊंचाइयां प्राप्त करनी है। स्टिल नॉट लिविंग, लेकिन हमें छोड़ना नहीं है, प्रयास हमें छोड़ना नहीं है। वी मस्ट लर्न टू लेबर, हमें आना चाहिए कि हमें कैसे वर्क हार्ड करना है। टू एक्ट वाइजली, कैसे हमें एक्ट वाइजली करना है। एंड वेट फॉर द रिवॉर्ड्स पेशेंटली, लेकिन हमेशा ही रिवॉर्ड्स का वेट पेशेंटली करना है। So going through this poem, we now realize how inspiring and motivating this poem has been. The poet conveys his message all over the poem, but I feel the first 2 lines and the very last line of the poem are enough to give an impression of what this poem is all about. We should not spend our priceless moments sitting idly and doing nothing. Rather, we have to work hard towards reaching our goal and to make the most out of this short life. मतलब हमें इस छोटे से जीवन में कार्य करते रहना चाहिए, उसी से ही हम कुछ पा सकते हैं और दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन छोड़ सकते हैं, उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं। थैंक यू।